Hello student, welcome to our OPS YouTube channel. My name is Monalisha. ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା OSSSC ନର୍ସିଂ ପାଇଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ। ତ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଆମକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 6372270928। ନମ୍ବରଟି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି 6372270928। ଯଦି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଆମକୁ ଏହି ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। Which electrolyte disturbance is most likely after prolonged diarrhea? ଯଦି prolonged diarrhea ହେଉଛି ତାହେଲେ କେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ର ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଦେଖାଦେବ? ଏଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି prolonged diarrhea ହେଉଛି ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ତ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା। ଯେହେତୁ ଏବିଜିର ପିଲାମାନଙ୍କ ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ପଚାରିବି ଯେ ଏବିଜି ଯଦି ଆନାଲାଇସିସ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ prolonged diarrhea ଜଣଙ୍କର ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଆଲକାଲୋସିସ୍ ଦେଖାଦେବ ନା ଏସିଡୋସିସ୍ ଦେଖାଦେବ? ଯଦି ଆମର ଏଠି prolonged diarrhea ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ଲିପିଡ୍ ପଦାର୍ଥ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଅଧିକ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଲସ୍ ହେଉଛି। ସୋ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖାଦେବ? ଏସିଡୋସିସ୍। ଯେହେତୁ ଏଠି ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତେଣୁ ମେଟାବୋଲିକ୍ ଏସିଡୋସିସ୍। ଆଉ ଯଦି ଭୋମିଟିଂ ଅଧିକ ହୁଏ, ଭୋମିଟିଂ ଅଧିକ ହେଲେ ଆମ ଏସିଏଲ୍ଟା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଉଛି, ତ ସେଠି କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ରେସ୍ପିରେସନ୍ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତ ମେଟାବୋଲିକ୍ ଆଲକାଲୋସିସ୍। ଏଥିରେ ମନେ ରଖିବ, ଯଦି ଆମର ଭୋମିଟିଂ ଅଧିକ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଆମର କ'ଣ ଦେଖାଦେବ? ମେଟାବୋଲିକ୍ ଆଲକାଲୋସିସ୍। ଯଦି ଆମର ଡାଇରିଆ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ମେଟାବୋଲିକ୍ ଏସିଡୋସିସ୍ ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା, ହୁଇଚ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବ ମୋଷ୍ଟଲି ଆଫ୍ଟର ଦ ପ୍ରୋଲଙ୍ଗଡ୍ ଡାଇରିଆ? ଡାଇରିଆ ପରେ କେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ର ଆବସେନ୍ସ ଦେଖାଦେବ? ଅପସନ୍ ଏ ହାଇପରକାଲେମିଆ, ऑप्शन बी हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन सी हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन डी हाइपर मैग्नेसीमिया। मते कोडा हमर करेक्ट आंसर हबो। जदि जनको प्रोलॉन्ग डायरिया होउची पोटेशियम लॉस हेबार बहुत चांसेस थाए। प्रोलॉन्ग डायरिया रे हमर पोटेशियम रो लॉस हेइ थाए। जदि पोटेशियम लॉस हाइपोकैलेमिया हबो। कोडा अछि कि हाइपोकैलेमिया? ऑप्शन बी होउची हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट तार किछ एक्सप्लेनेशन देखिनबा। Diarrhea cause significant gastrointestinal potassium loss resulting in hypokalemia. सेम जिनस ही कहिछि। नेक्स्ट देखिबा, which Glasgow scale score indicate severe brain injury? जेतिके से स्कोर देइछि या भीतर को Glasgow scale हमको इंडिकेट करूछि जे severe brain injury हेछि? ऑप्शन ए 13 रु 15, ऑप्शन बी 9 रु 12, ऑप्शन डी 8 और लेस, ऑप्शन डी 10 और 15। तो ग्लास्को गोमार सबुठु हाई स्कोर हमर केते 15। ताले 13 रु 15 तो नॉर्मल रेंज, एटा केबे हबनी, माइल्ड केस। मॉडरेट 8 रु कम हेले हमर एटा सीवियर केस देखाइ दबो। तो करेक्ट आंसर हो जे सब कम कोडा अछि 8 और 8 लेस, एटा हो जे मोर इंडिकेट सीवियर ब्रेन इंजुरी। ठीक अछि। जो ग्लास्को गोमा स्केल हम मेजरमेंट करूछन हम तीनटा जिंस देखि थान सेठी। गोटे होचे हमर आई ओपनिंग, मोटर और वर्बल रेस्पॉन्स। ताकू देखि कि हमर मार्किंग दिया जाय, जोटा कि 15 भीतर तार होचे हाईएस्ट रेंज। एक्सप्लेनेशन देखि नबा। ए ग्लास्को गोमा स्केल स्कोर ऑफ 8 or below is generally considered severe brain injury and may require airway protection. The most common pathogenic responsible for catheter associated urinary tract infection is? most common pathogen responsible को pathogen responsible हेता है urinary tract infection पाई? स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, इस्चेरिचिया कोलाई, विब्रियो कोलेरा, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी। करेक्ट आंसर कौन हम? इस्चेरिचिया कोलाई। E. coli is the leading cause of many urinary tract infection, including many catheter associated cases. Which electrolyte imbalance is most likely to cause positive Trojan sign?
ट्रोजियस साइन माने होउची हमर जोबेस्टिक साइन आ ट्रोजियस साइन यदि हाइपोकैलेमिया रे सॉरी हाइपोकैल्सेमिया केस रे देखा जाए जदि हमर हाइपोकैल्सेमिया होउची तो एठी कोन ट्राउजियस साइन सहित आ गोटे जोबेस्टिक साइन देखा दे जोबेस्टिक साइन माने कोन जदि एरा हमर चीक अछि चीक जो हम टैप करले सेरा हमर मसल कंट्रैक्शन देखा दबा आखिरु नै से जो काला पर्यंत मसल कंट्रैक्शन देखा दबा इंप्रेशन देखा दबा आउ होची हमर ट्राउजियस साइन कोन जे बीपी को बांधिबा हम हातडा एमती जो पैरालिसिस जेंति केम्पा जो हम जेंति कहंती हम हाथ जो रेडियस रो हमर हाथ बेंड हो जाए फिंगर पर्यंत तो सेटा होची ट्राउजियस साइन तो करेक्ट आंसर वो हाइपोकैल्सेमिया कैल्शियम अभाव रे हे दिरा साइन देखा जाए मोस्ट इंपोर्टेंट ट्राउजियस साइन गोटे आउट होची जोबेस्टिक साइन नेक्स्ट तार किछ एक्सप्लेनेशन देखि नबा ट्राउजियस साइन रिफ्लेक्ट इंक्रीज न्यूरोमस्कुलर एक्जिस्टेबिलिटी ड्यू टू हाइपोकैल्सेमिया A patient with severe dehydration BP होची 80/50 mm of Hg pulse होची 132 per minute and cold extremity कौन कौन हेची कंडीशन कौन देई देखो डिहाइड्रेशन हे जाईची बीपी होची 80/50 डिहाइड्रेशन होची फ्लूइड लॉस बीपी भी कमी जाईची किंतु पल्स होची हम 130 बीट पर मिनट हाई अछि आ कोल्ड एक्सट्रीमिटी भी हे जाईची तो प्रायोरिटी इंटरवेंशन हमर कोन रहबो से हमें कोन करबा जे नर्स ऑप्शन ए रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड फ्लूइड को कम कर दबा बिंग रैपिड आइसोटोनिक फ्लूइड resuscitation as ordered as closely monitor response ये में भी है ही पारे ऑप्शन सी encourage ambulation administer insulin immediately ये तो इंसुलिन किछि काम कहिनी तो आमर एठी प्रथमे आमे ताको बीपी जो डिहाइड्रेशन जे ताको ठीक करिबा बीपी को आमे ठीक करिया पल्स को नॉर्मल को आनिबा सेठी आमे एम्बुलेंस कथा आमे प्रथमे भाबिबा कि आमर हेडी फ्लूइड दबा जे हेडी फ्लूइड लॉस होउची ताको इमीडिएट क्लोज मॉनिटर करे तार बीपी चेक करबा ऑक्सीजन सचुरेशन का पल्स कंटिन्यू मॉनिटर हेई चलिबो इंक्रीज होउची ना नै आमर जो आमे ताको जो ट्रीटमेंट कहउचन ताकि लाभ होउची ना नै कंटिन्यू मॉनिटर करबा सेठी केबे एम्बुलेंस टा आसीबनी तो करेक्ट आंसर हमर हबो ऑप्शन बी होउची करेक्ट आंसर नेक्स्ट किछ एक्सप्लेनेशन देखि नबा hypovolemic shock require prompt restoration to intravenous volume hypovolemic shock require intravenous volume जो मन थरो यदि hypovolemic shock हे जा कहबा अर्थ हमको फ्लूइड दबा पई पड़े आइसोटोनिक फ्लूइड हमको दबा पई पड़े The preferred vasopressor for septic shock when hypotension persists deposit adequate fluid resuscitation is देखो ये कौन पचार जी द प्रिफर्ड vasopressor for septic shock कौन है क्लाइंट रो septic shock when hypotension persists despite adequate fluid resuscitation is जोठी का हमरो adequate fluid resuscitation करिया पई पडुची से कंडीशन कथा से पचार जी एटा में कौन तांकु दबा सेठी जेही तो एटी सेप्टिक शॉक भासोप्रेशर हेची तो एठी हमें कौन देखबा नॉरएपिनेफ्रिन तांकु ड्रग दिया जिवो बुझि पारलो नेक्स्ट देखिबा तांकु एक्सप्लेनेशन नॉरएपिनेफ्रिन इज कॉमनली recommended as the first line vasopressor in septic shock after adequate fluid replacement देख जिते जन को सेप्टिक शॉक हेची ताको हमें एडिक्वेट फ्लूइड देले ता परे हमें कोन करबा फर्स्ट लाइन भासोप्रेशर ड्रग भाबरे हमें रिकमेंडेड करबा नॉरएपिनेफ्रिन को ठीक अछि नेक्स्ट which acid base disorder is expected in severe uncontrolled diarrhea जदि हमर एबे जस्ट केयर हम कहउतली जदि सीवियर हमर अनकंट्रोल्ड डायरिया हो सेठी को एसिड बेस रे इम्बैलेंस देखा दबो ऑप्शन ए मेटाबॉलिक अल्कालोसिस ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एसिडोसिस ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जेंतु ये डायरिया होची फ्लूइड लॉस होची सो हमर एटी अल्कालोसिस हबो पिन जदि एटी केतन रेस्पिरेशन कथा कहनी सो मेटाबॉलिक अल्कालोसिस होची हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट तार किछ एक्सप्लेनेशन देखि नबा सॉरी म कोन कहले एटी गोटे सेन कोन कहि देले रे ओहो एटी तार डायरिया हे जे फ्लूइड लॉस होची मेटाबॉलिक एसिडोसिस जोटा कि क्लास आरंभ तुम कही ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस हम जदि वोमिटिंग होची ताले मेटाबॉलिक अल्कालोसिस हम जदि आमर सीवियर डायरिया होची मेटाबॉलिक एसिडोसिस हम ठीक अछि लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट रिच इंटेस्टिनल फ्लूइड कैन प्रोड्यूस मेटाबॉलिक एसिडोसिस
Which of the following is the best indicator of effective ventilation during bag mask ventilation? बेस्ट इंडिकेटर जदि आम जन बैग मार्क्स भेन्टिलेसन आम दौरान तो बेस्ट इंडिकेटर कौन से ठीक से आमर जो भेन्टिलेसन ठीक से काम दौर ठीक से आम इफेक्ट पकाउछि बॉडी उपरे आम केमी जापर ऑप्शन ए हूँ इंक्रीज ब्लड प्रेशर ऑप्शन बी विजिबल चेस्ट राइट विथ ईच ब्रीथ ऑप्शन सी डायलेटेड प्यूपिल ऑप्शन डी इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट तो करेक्ट आंसर हम कौन हम विजिबल चेस्ट राइज विथ ईच ब्रीथ जदि आम ब्रीथिंग दौरान जन को जब चेस्ट राइज कर ठीक से ब्रीथ देला जाने आम इफेक्टिव ब्रीथ तक आम दौरान नेक्स्ट देखा adequate chest expansion indicate effective ventilation ए पेशेंट विथ क्रोनिक किडनी डिजीज गोटे क्लाइंट अच्छी जहार कि कौन है क्रोनिक किडनी डिजीज है इट हाएस्ट रिस्क फॉर मुझे जदि क्रोनिक किडनी डिजीज हो किडनी आमर हाई जो हाइपर कैलेमिया हो कहीं जो देखिए एक्सेसिव यूरिनेशन कि बाउली हो पोटासियम लॉस है कि हाइपो कैलेमिया हो जाए जदि लॉस ना जेहेतु किडनी फेल्योर हो ठीक से आम यूरिनेट होनी फ्लूइड रही जाओ ताले कौन हम बाइंडिंग करदेव से हूँ हाइपर कैलेमिया देखादेव तो करेक्ट आंसर हूँ हाइपर कैलेमिया आउरी भी एक्सप्लेनेशन अच्छे देखनी तार रीजन रिड्यूस रेनल पोटासियम एक्सक्रेशन इनक्रीज द रिस्क ऑफ द हाइपर कैलेमिया आमर रेनल पोटासियम एक्सक्रेशन होनी ताले आमर हाइपर कैलेमिया देखादेव इन व्हिच इज केयरिंग फॉर सॉरी ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट रिसीविंग मैनिटल की डायूरेटिक ऑस्मोटिक डायूरेटिक आ फ्रुसामाइड को डायूरेटिक लूप डायूरेटिक ये कौन कही नर्स केयरिंग ए पेशेंट गोटे केयरिंग को पेशेंट केयर करुच्ची जो पेशेंट की रिसीव कर मेनिटल व्हिच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेशन द मेडिकेशन इज इफेक्टिव एमती कौन इंडिकेशन आम देखा जो थी जापर जे मेडिकेशन ठीक से काम करुच्ची ऑप्शन ए डिक्रीज यूरिन आउटपुट मैनिटल दौरान यूरिन डिक्रीज होगा केमती हो रंग हम इनक्रीज इंट्राकार्नियल प्रेशर देखा ये इफेक्टिव पर्याय तापर इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट रिड्यूस साइन ऑफ सेरेब्रल एडिमा ब्राडिकार्डिया विथ हाइपरटेंशन ये ऑस्मोटिक डायबिटिक एटा हम एडिमा को कम करिबारे हेल्प करे यूरिन आउटपुट को ठीक करे करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी नेक्स्ट देखिबा मैनिटल इज ए ऑस्मोटिक डायबिटिक दैट प्रोमोट डाययूरेसिस एंड हेल्प रिड्यूस इंट्राक्रैनियल प्रेशर आ मध्य इंट्राक्रैनियल प्रेशर को भी रिड्यूस करिबारे हेल्प करे से ऑप्शन रही गली किंतु एक्चुअली मेन काम डायबिटिक काम जेहेतु आम करूचे आम सेरेब्रल एडिमा इंक्रीज आउटपुट को आम अधिक प्रायोरिटी देबा बुझी पारल नेक्स्ट देखिबा ए पेशेंट विथ सीवियर पैनक्रिएटाइटिस गोटे क्लाइंट जब सीवियर पैनक्रिएटाइटिस हो जाए मोस्टली लाइक टू हाव व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस मोस्टली को इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस देखा कौन है तार सीवियर पैनक्रिएटाइटिस हो जाए देख यदि आमर पैनक्रिएटाइटिस होची एक्यूट केस रे ही पैनक्रियास कौन करबा ना कैल्शियम को बाइंड कर रखिदेव से कैल्शियम अभाव देखा दिए हाइपोकैल्सेमिया जो सीवियर केस भी आम सेम देखादेव हाइपोकैल्सेमिया तार किसी एक्सप्लेनेशन देखी ना फैट नेक्रोसिस इन एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस बाइंड कैल्शियम लीडिंग टू हाइपोकैल्सेमिया ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हबार मोस्ट कॉमन कॉज कौन बारंबार तुम कहूँ जदि CO2 आम बॉडी रे अधिक हो जाए ताले सॉरी एसिडोसिस देखादेव जेहेतु CO2 इम्बालांस हो तो रेस्पिरेटरी हम तो आम करेक्ट आंसर ये आखि बुझी आम लिखिपर ऑप्शन बी हूँ आमर करेक्ट आंसर कारण हाइपोवेंटिलेशन कॉजिंग CO2 रिटेंशन ठीक अच्छे नेक्स्ट तो मैंने कही एबीजी बोली एबीजी तुम क्लास करे सारी सब डेली MCQ रे एबीजी भी क्वेश्चन रखुची जदि भी कहार बुझी न पारुछ मते कमेंट रे पचारिबो हाइपोवेंटिलेशन कॉजिंग CO2 रिटेंशन inadequate ventilation lead to carbon dioxide retention and respiratory acidosis
A patient receiving blood transfusion develop fever, chill, flank pain, the priority nursing action करना माने बारंबार कही जदि आमर ब्लड ट्रांसफ्यूजन समय फीवर चिल देखा दौजी तार कारण दीटा फीवर आसवा दीटा कारण हो पारे गोटे हूँ आमर कौन जदि आम जदि तार थी ए पॉजिटिव आम लगे बी पॉजिटिव तो जदि आम अल्टरनेट ब्लड ग्रुप आम ब्लड देती नहले आमर आउ गोटे कारण फीवर आसीपारे आमर जदि इनफेक्शन किसी माने सेप्टिक किसी हो बेसिकाली को केस हुए ना 4 घंटा अधिक आम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दौन 6 घंटा 7 घंटा से जगह भी आम जब किसी इनफेक्शन से बॉडी रिएक्शन हो जाए बॉडी ब्लड को रिसीव करूनी से फीवर आ चिल देखादब हेले ये आम कौन कर ए दुटा केस ही आम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्लो न करके स्टॉप कर बाकी सब केस तो तुमको पढ़ाई क्लास ग्रुप माने आमर बैच रे से तुमको कौन कही ना बाकी यदि कंडीशन तुम रहा से गुड़ाक आम कौन करवा ना इनफ्यूजन को जस्ट आम स्लो करदेबा किंतु ए दुटा जब केस होची आम कौन करा इनफ्यूजन को आम स्टॉप करवा देन आईवी इनफ्यूज एनएस आम दबा तापर जाके आम डॉक्टर को इनफॉर्म करवा ठीक अच्छे तो ये करेक्ट आंसर ताले कौन हम ऑप्शन बी स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड मेंटेन आईवी एक्सेस मेंटेन माने कौन करबा एनएस दबा विथ नॉर्मल सैलाइन एज पर प्रोटोकॉल नेक्स्ट तार किसी एक्सप्लेनेशन आम देखि नबा देयर दिस सिम्पटम मे इंडिकेट एन एक्यूट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड रिक्वायर इमीडिएट सेंसेशन ऑफ द ट्रांसफ्यूजन A patient with severe hypothyroidism is at risk of developing a question कौन कहूँ ना गोटे क्लाइंट सीवियर हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाए या भर कौ रिस्कटा हो पारे मोस्टली आम हाइपोथायरॉइड सिम्पटम आम पढ़ी आछंती एक्सेसिव स्वेटिंग हवा किंतु एठी तो सही जिनस नाई एठी कौन कौन दिए ना थायराइड स्ट्रोम ऑप्शन बी मेक्सिडेमा कोमा ऑप्शन सी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ऑप्शन डी कुशिंग सिंड्रोम तो यहाँ मुझे कहीदे देख जो हाइपोथायरॉइडिज्म हो मेक्सिडेमा कोमा देखादब एटी कौन हुए ना आम स्किन गुड़ाक जमी मैंने कहती सेता पड़े देखा हुए सेमती स्किन फुलिक से देखादब बहुत ओल्ड एज भाया लगे मून लाइक फूड सेमती आम से टाइप भी हो जाए स्किन गुड़ाक यहाँ लिखा हेनी के एग्जाम पकेब जो मून लाइक फूड तुम हाइपोथायरॉइड जस्ट बुझापी को स्किन एमती हो जाए मैंने इमेज तुम नेट मारे तो देखिपर तो करेक्ट आंसर आमर हम मैंने फुली जाती आ मेक्सिडेमा कोमा नेक्स्ट देखिबा मेक्सिडेमा कोमा इज ए रेयर बट लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर हाइपोथायरॉइडिज्म रो एटा गोटे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नेक्स्ट देखिबा ए पेशेंट विथ एडिशंस डिजीज इज एक्सपेक्टेड टू हैव गोटे क्लाइंट जार कि एडिशन डिजीज हेजी सेठी माने कोन सिम्पटम तांकर देखा दबो प्रथम जानबे जे आम एडिशन डिजीज कौन देख एडिशन डिजीज हूँ गोटे एडिनाल इनसफिशिएंट प्राइमरीली आमर एडिनाल रे इनसफिशिएंस देखा जाए जोटा कि रेल एंडोक्राइन गोटे डिसऑर्डर बुझीपार जी कि आमर जो एडिनाल ग्लैंड अच्छी से एनफ हार्मोन प्रोड्यूस कर पारिबो एडिनाल ग्लैंड कौन हार्मोन आम प्रोड्यूस करे कोर्टिजोल आ एल्डोस्टेरोन से हार्मोनटा एडिनाल ग्लैंड प्रोड्यूस कर पारिबो नाही ताले मते कुआ करेक्ट आंसर एटी कौन हबो ऑप्शन ए हाइपरनेट्रेमिया ऑप्शन ए एंड हाइपोकेलेमिया ऑप्शन बी हाइपोनेट्रेमिया एंड हाइपरकेलेमिया ऑप्शन सी हाइपरकेल्सेमिया एंड हाइपरनेट्रेमिया ऑप्शन डी हाइपोकेलेमिया एंड मेटाबॉलिक अल्कालोसिस तो करेक्ट आंसर एटी कौन हबो एठी हमर करेक्ट आंसर कौन हबो हाइपोनेट्रेमिया एंड हाइपरकेलेमिया कौन हबो हाइपोनेट्रेमिया एंड हाइपरकेलेमिया पोटासियम बढ़ी जीवो किंतु आमर सोडियम कमी जीवो एडिशन डिजीज रे तो किछ एक्सप्लेनेशन हमें देखि नबा एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी लीड टू सोडियम लॉस एंड पोटासियम रिटेंशन पोटासियम बढ़ी जाए सोडियम टा लॉस हो जाए Which complication is most feared during insertion of a central venous catheter in the subclavian vein? देखो subclavian vein माने कौन आम जो कोलर बोन अच्छे ब्यूटी बोन को तार जस्ट तले थाए तो सेठ जिते आम कौन कहते ना सेंट्रल वेनस कैथेटर आम लगौन कौन कॉम्प्लिकेशन हबार चांसेस था ऑप्शन ए हाइपरग्लाइसेमिया ऑप्शन बी निमोथोराक ऑप्शन सी कैटराक्ट ऑप्शन डी ओटाइटिस मीडिया मत कह से किसी
कनेक्शन अच्छी कि नहीं, यार भी नहीं। हाइपर ग्लाइसेमिया मैंने तुम कनेक्शन कले हाइपर ग्लाइसेमिया हो कि ये आम निमोथोराक्स देखादेव। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन से कौन कही ना, एक्सीडेंटल प्लूराल इंजुरी कैन कॉज निमोथोराक्स ड्यूरिंग सबक्लाविकल वेनस एसेस। एतिकी जो मैंने क्लास जहाँ भी तुम डाउट अच्छे मतलब कमेंट माध्यम पचारि पार कि कौटा तुम क्वेश्चन चाहूँ ताहा भी कहीपर। पिला सिचुएशन बेस्ड कले सिचुएशन बेस्ड आने एबीजी डाउट पचारे एबीजी डाउट क्लीयर करी। तो तुमको जहाँ दरकार मत से हिसाब से तुम जो कमेंट कर नेक्स्ट क्लास से हिसाब से आने चाहिए चेष्टा करी। तुमने हार्ड लेवल कहल ओभर हार्ड लेवल केबे आम पॉलिसी दबनी मीडियम हार्ड सहित इजी भी दब। तुम से हिसाब से क्वेश्चन तुम आणुची। जदि आपण मानक क्लास भल लगी लाइक शेयर कमेंट करने जमा भी भूलें। आउ सहित जो मैंने बैच नापी चाहूँगी आम सहित कंटाक्ट करूँ। आम कंटाक्ट नंबर टी हूँ 6372270928। यही नंबर आम सहित कंटाक्ट करेंगे। डेली रेगुलर जूम क्लास सहित डाउट क्लियरिंग क्लास बी बाय क्यू प्रीवियस ईयर एमसीक्यू डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस एग्जाम सब जगह करा जाउची। यदि आपण माने आम सहित जोड़ी होगा चाहूँ निहाती आम सहित यही नंबर कंटाक्ट करेंगे।